हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9, एंशिएंट किंगडम्स ऑफ द साउथ, दक्षिण के प्राचीन राज्य। इस चैप्टर में 6 पॉइंट कवर किए गए हैं। फर्स्ट है द चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी। सेकंड है द सतावना डायनेस्टी। थर्ड है द वकाटका डायनेस्टी। फोर्थ है द चालुक्य डायनेस्टी। फिफ्थ है द पल्लवा डायनेस्टी और सिक्स है द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश या खानदान। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। The Chair, Pandya and Chola dynasty. Of the many dynasties in South India, three are mentioned in the literature of those times. These are the Chair, Pandya and Chola dynasties. These dynasties were in power around the 4th century BCE or even before that. They find mention in the Ramayana and Mahabharata epics. They have also been mentioned in the Sangam literature in Tamil and in the inscription of the Maurya Emperor Ashoka. In the Periplus of the Erythraean Sea, Muziris is mentioned as an important port on the coast of Kerala. This port was in the Chair Kingdom and was a major center for the export of spices, pearls, precious stone, etc. to Rome in Italy and to other countries of the West. The Pandya Kingdom was a part of today's Tamil Nadu. There was a great demand for the high quality pearls. The capital of this kingdom was Madurai. The ancient kingdom of the Cholas occupied the region of Tiruchirappalli in Tamil Nadu. दक्षिण भारत के कई राज्यवंशों में से तीन का उल्लेख यानी जिक्र उस समय के साहित्य में मिलता है। ये चेर, पांड्या और चोला राजवंश है। ये राजवंश चौथी शताब्दी यानी 4th सेंचुरी बीसी या उससे पहले से सत्ता में थे। रामायण और महाभारत के महाकाव्य में भी इनका उल्लेख मिलता है। उनका उल्लेख तमिल के संगम साहित्य और मौर्य सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी किया गया है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में केरल के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में मुजिरिस का उल्लेख किया गया है। यह बंदरगाह चेर साम्राज्य में था। इटली में रोम और पश्चिम के अन्य देशों में मसाले, मोती, कीमती पत्थरों आदि के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था। पांड्या राज्य आज के तमिलनाडु का एक हिस्सा था। उनके उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाले मोती की बहुत मांग थी। इनकी राजधानी मदुराई थी। चोलास के प्राचीन राज्य ने तमिलनाडु में तिरुचिरप्पाली के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। Second point है the Satavahana dynasty. As in the north, after the decline of the Maurya Empire, the local kings in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka also became independent. They established small kingdom of their own. One of these was the Satavahana dynasty. Pratishthan or the present-day Paitan in Maharashtra was their capital. King Simukh was the founder of the Satavahana dynasty. The inscription in the Naneghat cave near Junnar in Pune district bear the name of the important person of this dynasty. Some of the Satavahana kings were known to write their mother name before their own. For example, गौतमी पुत्र सताकर्णी। उत्तर में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में स्थानीय राजा यानी लोकल किंग भी स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपने खुद के छोटे राज्यों की स्थापना की। इनमें से एक सतावन वंश था। प्रतिष्ठान या वर्तमान महाराष्ट्र में पैठन उनकी राजधानी थी। राजा सिमुख सतावन वंश के संस्थापक थे। पुणे जिले के जुन्नार के पास नानेघाट की गुफाओं के इंस्क्रिप्शन में इस राज्यवंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम हैं। सतावन राजाओं में से कुछ अपनी मां का नाम अपने नाम से पहले लिखने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सताकर्णी। ऑफ द सतावना किंग्स, गौतमी पुत्र सताकर्णी इज पर्टिकुलरली वेल नोन। A stone inscription in a cave at Nasik describe his deeds of valor. He had defeated the Shaka king Napana. He is described as Tri Samudra Toyapid Vahan. Toya means water. The title means one whose horses have drunk the water of three seas. The three seas are the Arabian Sea, the Bay of Bengal, and the Indian Ocean. During his reign, the empire of the Satavahana extended from the river Narmada in the north to the Tungabhadra river in the south. सतावना राजाओं में से गौतमी पुत्र सताकर्णी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। नासिक की एक गुफा में एक पत्थर के इंस्क्रिप्शन में उनके डीड्स ऑफ वेलर यानी उनकी वीरता के, बहादुरी के कार्यों का वर्णन है। उन्होंने शाका राजा नाहपना को हराया था। उन्हें त्रिसमुद्र तोयापीड वाहन के रूप में वर्णित किया गया है। तोया का मतलब है पानी। इस टाइटल का मतलब है वो जिसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पी चुके हैं। 3 समुद्र है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उनके शासनकाल के दौरान सतावना का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगाभद्रा नदी तक के फैला हुआ था। The famous poetic work Gatha Saptashati in Maharashtra, a Prakrit language, was composed by the Satavahana king Hala. This work provides information about the life of the people during the Satavahana period. Indian trade increased greatly during the Satavahana period. Paitan, Ter, Bokardan, Kolhapur were recognized as important centers of trade.
During this period, many artistic objects were produced at these places. Indian goods were exported as far away as Rome. Some of the Satavahana coins carry images of ships. The cave sculptures at Ajanta, Nasik, Karla, Bhaje, Kaneri, Junnar in Maharashtra were carved during the Satavahana period. महाराष्ट्री में प्रसिद्ध काव्य कीर्ति गाथा सप्ताशती एक प्रकृत भाषा है जिसे 57 राजा हाला द्वारा रचित यानी कंपोज किया गया था। ये कार्य 57 काल के दौरान लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। 57 काल में भारतीय व्यापार बहुत बढ़ गया। पैठन, टेर, भोकरदन, कोल्हापुर को व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अवधि के दौरान इन स्थानों पर कई कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन किया गया था। रोम तक भारतीय सामान का निर्यात किया जाता था यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। 57 के कुछ के सिक्कों पर जहाजों के चित्र यानी इमेजेस थे। महाराष्ट्र में अजंता, नासिक, कार्ला, भाजे, कानेरी, जुन्नार की गुफाओं की मूर्तियां 57 काल में बनाई थी। थर्ड पॉइंट है द वकाटका डायनेस्टी। द पावर ऑफ द Satavahanas began to weaken by the 3rd century CE. Among the dynasties that emerged after that, the Vakataka was a powerful dynasty. It was founded by the king Vindhyashakti. He was succeeded by Pravarsin I. After his death, the kingdom of the Vakataka got divided. There were two main branches. The capital of the first was at Nandivardhan, near Nagpur, and the capital of the other branch was at Vatsagulm, which is today's Washim. Pravarsin I, son of Vindhyashakti, extended the Vakataka kingdom in the north up to the Malwa and Gujarat, and in the south up to Kolhapur. At that time, Kolhapur was known as Kuntal. We have read that Gupta Emperor Chandragupta II had married his daughter Prabhavati to Rudrasen II, the Vakataka king. Varadev, a minister of the Vakataka king Harishen, was a follower of Buddhism. Cave number 16 at Ajanta was dug at his instant. Some other caves at Ajanta were dug and beautified with paintings during Harishena's reign. The Vakataka king Pravarsen II composed Setuban in Maharashtri, a Prakrit language. Similarly, Kalidas Meghdut also belonged to this period. 57 की शक्ति तीसरी शताब्दी यानी 3rd सेंचुरी से कमजोर पड़ने लगी। उनके बाद उभरे राजवंशों में वकाटका एक शक्तिशाली राजवंश थे। यह राजा विंध्याशक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। उनके बाद प्रवर्सन I ने इस राज्य को संभाला और फिर उनकी मृत्यु के बाद राज्य वकाटका का विभाजन हो गया यानी डिवाइड हो गया। इसकी मुख्य दो शाखाएं थी। पहली की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के पास और दूसरी शाखा की राजधानी वत्सगुल्म में थी जो आज का वाशिम है। विंध्याशक्ति के पुत्र प्रवर्सन I ने वकाटका साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर में मालवा और गुजरात तक और दक्षिण में कोल्हापुर तक। उस समय कोल्हापुर को कुंतल के नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ा है कि गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त II ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वकाटका राजा रुद्रसेन II से किया था। वकाटका राजा हरिसेन बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी फॉलोवर थे। अजंता में गुफा नंबर 16 उनके बारे में बताने के लिए खोदी गई। अजंता की कुछ अन्य गुफाओं को हरिसेना के शासनकाल के दौरान खोदा गया और उन्हें चित्रों से सुशोभित किया गया। वकाटका राजा प्रवर्सन II ने महाराष्ट्र में सेतुबंध की रचना की जो एक प्राकृत भाषा है। इसी तरह कालिदास का मेघदूत भी इसी काल का है। फोर्थ पॉइंट है द चालुक्य डायनेस्टी। द चालुक्य डायनेस्टी इन कर्नाटका was a powerful one. The kingdom of Kadamba Kalachuri had become powerful after the decline of the Vakatakas, but the Chalukya kings established their dominance over all of them. Pulakeshi I established the rule of the Chalukya dynasty in the 6th century CE. His capital was Badami, which was earlier called Vatapi. The Chalukya king Pulakeshi II had successfully repulsed Emperor Harshvardhan invasion. The famous temples at Badami, Aihole, and Patadakal were built during the Chalukya period. कर्नाटक में चालुक्य वंश एक शक्तिशाली वंश था। कदम्बा कालाचुरी के राज्य वकाटका के पतन के बाद शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन चालुक्य राजा ने उन सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया यानी उनका बाकी सभी पर डोमिनेंस था, दबदबा था। पुलकेशी I ने 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी CE में चालुक्य वंश का शासन स्थापित किया। उनकी राजधानी बदामी थी जिसे पहले वटापी कहा जाता था। चालुक्य राजा पुलकेशी II ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया यानी उन्हें हरा दिया। यहाँ रिपल्स का मतलब है खदेड़ना, खत्म करना। बदामी, ऐहोले और पताड़ाकल में प्रसिद्ध मंदिर चालुक्य काल के दौरान बनाए गए थे। फिफ्थ पॉइंट है द पल्लवा डायनेस्टी। द पल्लवास वेर ऑल्सो अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। कांचीपुरम इन तमिलनाडु वॉज देयर कैपिटल. Mahendra Varman was an able Pallava ruler.
He expanded the Pallava kingdom. He was also a playwright. His son Narasimha Varman repulsed the attack on his kingdom by the Chalukya king Pulakeshi II. The famous Ratha temples of the Mahabalipuram were sculpted during his reign. These temples have been sculpted in single rock. पल्लवा भी दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तमिलनाडु में कंचीपुरम उनकी राजधानी थी। महेंद्र वर्मन एक सक्षम पल्लव शासक थे। उन्होंने पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया। वो एक नाटककार भी थे। उनके पुत्र नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य राजा द्वारा उनके राज्य पर किए गए आक्रमण का सफलतापूर्वक जवाब दिया। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध राठा मंदिरों को उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इन मंदिरों को एक चट्टान में तराशा गया है। The Pallavas had a powerful and well-equipped navy. During this period, India came in close contact with the countries of Southeast Asia. Internal and foreign trade flourished. Yuan Chuang had visited Kanchi and recorded that people of all religions received tolerant and just treatment under the rule of the Pallavas kings. पल्लव के पास एक शक्तिशाली और वेल इक्विप्ड यानी अच्छी तरह से लैस नौसेना थी। इस अवधि के दौरान भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ निकट संपर्क में आ गया। आंतरिक और विदेशी व्यापार फला फूला। युआंगचुआंग ने कांची का दौरा किया था और यह दर्ज किया था कि पल्लव राजाओं के शासन में सभी धर्मों के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। पॉइंट नंबर 6 है द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। एट द हाइट ऑफ देयर पावर, द डोमिनियन ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सटेंडेड फ्रॉम द विंध्या माउंटेन्स up to the Kanyakumari in the south. Their power was first established in Maharashtra by King Dantidurg. Krishna Raja I had the famous Kailash temple carved at Ellora. उनकी शक्ति की ऊंचाई पर विंध्या पर्वत से दक्षिण में कन्याकुमारी तक राष्ट्रकूट वंश का प्रभुत्व बढ़ा, यानी उनका डोमिनेंस बढ़ा, दबदबा बढ़ा। उनकी शक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र में राजा दांतीदुर्ग द्वारा स्थापित की गई थी। कृष्णा राजा वन का एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था। Up to now, we have learned about the different dynasties that ruled ancient India. In the next lesson, we will review the social and cultural life in ancient India. अब तक हमने विभिन्न यानी अलग अलग राजवंशों के बारे में सीखा है जो प्राचीन भारत पर शासन करते थे यानी राज करते थे। अगले चैप्टर में हम प्राचीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। कैन यू टेल Whose name did the Satavahana kings write before their own? सतावना राजा अपने नाम के आगे किसका नाम लिखते थे? आंसर है मदर्स यानी माताओं का। सेकंड क्वेश्चन है द एंशिएंट नेम ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर का प्राचीन नाम। आंसर है कुंतल। कंप्लीट द टेबल बाय रीडिंग द मैप इन द लेसन। तो यहाँ पर हमें टेबल को कंप्लीट करना है। सेकंड रो का आंसर है चालुक्यास और थर्ड रो का आंसर है भाजे, अजंता, जुन्नार, नासिक, कार्ला और कानेरी। टेबुलेट द फॉलोइंग नेम एज डायनेस्टीज एंड देयर कैपिटल। यहाँ पर हमें डायनेस्टीज और कैपिटल के नाम दिए गए हैं। नीचे दिए गए टेबल के अंदर हमें इन्हें अरेंज करना है। सतावना प्रतिष्ठान, पांड्या मदुराई, चालुक्या वटापी, पल्लवा कांचीपुरम, वकाटका नंदीवर्धन। आंसर इन वन सेंटेंस। नेम द एंशिएंट डायनेस्टी ऑफ सदर्न इंडिया। दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों का नाम बताइए। आंसर द सतावना, द वकाटकास, द चालुक्यास एंड द पल्लवास वेर द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ सदर्न इंडिया। सतावना, वकाटका, चालुक्या और पल्लवा दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर विच लोकल किंग्स बिकेम इंडिपेंडेंट। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन से राजा स्वतंत्र हो गए? आंसर The rulers in North India as well as in Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka in the South India established their independent power after the decline of the Maurya Empire. उत्तर भारत के साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में कर्नाटक के शासकों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। आंसर इन ब्रीफ। राइट अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन की उपलब्धियों के बारे में लिखिए। आंसर The Pallava king Mahendravarman was an able ruler and a man of learning. He had written a book on music. He encouraged painting, sculpture and other arts. पल्लव राजा महेंद्र वर्मन एक योग्य शासक और सीखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने संगीत पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कलाओं को प्रोत्साहित किया। What is mean by त्रिसमुद्र तोयापीठ वाहना?
त्रिसमुद्र तोयापीठ वाहना का क्या मतलब है? आंसर, we find the description of the valor of King Gautamiputra Satakarni on a stone inscription in a cave at Nasik. His valor is described in the words Trisamudra Toyapid Vahana, meaning one whose horses have drunk the water of three seas. हमें नासिक की एक गुफा में एक पत्थर पर इंस्क्रिप्शन है जहां पर राजा गौतमीपुत्र सताकर्णी की वीरता का वर्णन मिलता है। उनकी वीरता को शब्दों में वर्णित किया गया है त्रिसमुद्र तोयापीठ वाहना, जिसका मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया है। What goods were exported from the मुजिरिस पोर्ट? मुजिरिस बंदरगाह से क्या माल निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता था? आंसर, मुजिरिस पोर्ट was near Kochi on the coast of Kerala. From this port, spices, pearls, precious stone, and other goods were exported to Rome and the other countries in the west. मुजिरिस बंदरगाह केरला के तट पर कोची के पास था। इस बंदरगाह से मसाले, मोती, कीमती पत्थरों और अन्य सामानों को रोम और पश्चिम के देशों में निर्यात किया जाता था यानी एक्सपोर्ट किया जाता था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।